ارے اعلی حضرت کوئی ایسی ویسی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے والی وہ شخصیت ہے۔ اسی لیے ہر سنی احمد رضا کی بارگاہ میں قراض عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، عرض تو یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو دوسرے ولیوں کو نہیں عطا فرماتا۔ مست ایسے ہوا کرتے ہیں تمام ولیوں سے جن کا بلند و بالا مرتبہ ہو تو وہ مستوں کا ہے۔ مستوں کا جھومنا عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے اور ان مست کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ایک ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو ایک عالم کے لیے بھی خدمت میں ہونا ضروری ہے کہ جب تک عالم کسی بڑے آدمی کی، اپنے پیر و مرشد کی یا کسی اور بزرگ کی خدمت نہیں کرے گا، اس کا علم اس کے عمل میں نہیں آئے گا۔ عالم کے لیے خدمت میں ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے، علم پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ عالم کے لیے خدمت ضروری ہے، اسی طرح ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ آپ نے مولانا روم علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا کہ مولانا روم، جن کا پورا نام مولانا عارف رومی ہے، کہ ایک بار اپنے مدرسے میں پڑھا رہے تھے، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اچانک ایک ملنگ آ گیا۔ وہ ملنگ آج کل کے ملنگوں جیسا نہیں تھا۔ آج کل کے ملنگوں کا حال تو یہ ہے کہ ہاتھ وچ ونگ تاجی کو تیرے سنگ، ہر روز پیندے نے بنگ، پی کے مولا علی دے ملنگ، استغفر اللہ۔ ایسے ملنگ ہوا کرتے ہیں جن کو نماز سے بڑی چڑ ہوتی ہے، مولانا کو دیکھ کے بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ ملا کہاں آ گیا۔ اور جب نماز کا کہتے ہیں کہ مولانا چلو بابا صاحب نماز پڑھنے کے لیے چلو، تو کہتے ہیں ہماری نماز مولا علی نے ادا کر لی۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ مولا علی کے ملنگوں کی توہین ہے۔ مولا علی تو وہ ہے، مولا علی تو وہ ہے جن کی ایک نماز قضا ہو گئی تو رونے لگے، ایک نماز قضا ہو گئی تو رونے لگے۔ علامہ محدث امام راضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان میں بیان فرماتے ہیں، جلد 3 صفحہ نمبر 190، اور علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب خیبر کو فتح کر لیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو لے کر، غلامان مصطفیٰ، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ بیچ میں جب مقام صحبہ پہ پہنچے، مقام صحبہ پہ پہنچے تو حضور نے وہاں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کی وجہ سے باہر روانہ کیا۔ حضرت علی کام کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ یہاں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کملی والے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز عصر کی جماعت کرائی، جماعت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی آئے۔ حضرت علی آئے تو حضور نے کہا کہ اے علی، بہت تھک گیا ہوں، دل کرتا ہے کہ آرام فرما لو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یہاں بستر تو نہیں ہے لیکن ہاں میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میری جولی کے اندر اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما لے، میری گود کے اندر اپنا سر رکھ کے آرام فرما لے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو گئے، حضرت علی بیٹھ گئے، حضور نے سر رکھ دیا، حضور نے سر رکھا، حضور نے آرام فرمایا۔ اور یہاں پہ حضرت علی حضور کی دیدار میں مست ہو گئے، حضور کا دیدار کرتے رہے۔ دیکھا نہیں کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت علی حضور کو دیکھتے رہے، گویا کہ آسمان کے فرشتے یوں کہنے لگے، زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پہ عرش اعلیٰ کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں۔ یوں گویا ہونے لگے، زمین کے آسمان کے فرشتے یوں کہنے لگے، حضرت علی دیدار میں مست، حضرت علی دیدار کرتے رہے، حضرت علی یہ سوچتے رہے، میری نماز بھی یہ، میری
बावजूद भी ये मेरे गोद में जलवा हुस्न यार का। हजरत अली का ये अकीदा था, मैं युतीउल्लाह फक़द अता अल्लाह, यानी जिसने रसूल की इताअत की उसने हुजूर सल्लल्लाहु, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की। ये हजरत अली का अकीदा था। अगर हजरत अली के मुकाबले में कोई वहाबी, कोई नजदी मुल्ला होता तो हुजूर को अपने मिसल समझ के उठा देता और कहता मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, लेकिन वो अली थे, हुजूर के राजदा थे और भाभी मदीनतुल इल्म थे, जानते थे नमाज़े कर कजा हो फिर अदा हो, नमाज़े कर कजा हो फिर अदा हो, निगाहों की कज़ाए कब अदा हो, निगाहों की कज़ाए कब अदा हो। ये हजरत अली का अकीदा था। हुजूर आराम फरमाते रहे, हजरत अली हुजूर का दीदार करते रहे, और जब कुछ वक्त गुजरी तो हजरत अली को ये ख्याल आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाफिज़ु अला सलाति व सलाति अला वुस्ता, यानी अपने नमाजों की हिफाजत करो, खास करके नमाज वुस्ता को, वुस्ता दरमियानी को कहते हैं, यानी असर की नमाज। ये ख्याल आया, हजरत अली ने अपना चेहरा उठाया, देखा सूरज डूब रहा है, एक तरफ एक नजर सूरज को देखते, एक नजर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते, और हजरत अली ये परेशान हो गए, एक तरफ उसे देखते, एक तरफ यहाँ हुजूर को देखते। हजरत अली परेशान हो गए और थोड़ी देर हुई सूरज डूब गया। हजरत अली ने ये सोचा कि अली क़यामत के दिन अगर खुदा पूछ लेगा कि अली तूने मेरी एक नमाज जानबूझकर क्यों कज़ा कर दी, अली तू जवाब क्या देगा। हजरत अली ने जब ये सुना, सोचा तो आंखों में से आंसू निकल गए। अरे कुर्बान जाऊं हजरत अली की उन नन्हे नन्हे आंसुओं पे जो निकले तो हजरत अली की आंखों से, मगर गिरे तो मुस्तफा के चेहरे पे, वह दुहा वाले चेहरे पे गिरे। और हजरत अली के सामने दो मसले पैदा हो गए थे। हुजूर ख्वाब राहत से जब उठे, हजरत अली से फरमाया मां युबकी को या अली, अली तुझे किस चीज ने रुलाया। हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। हुजूर ने कहा असर की नमाज कज़ा हो गई तो मुझे उठा के पढ़ लेनी चाहिए। तो हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरे ईमान के तकाजे ने गवारा न समझा कि मैं आपको उठा दूं। हजरत अली के सामने दो मसले पैदा हो गए थे, एक इबादत खुदा, दूसरा इताअत मुस्तफा। अगर इबादत खुदा करते इताअत मुस्तफा छूट जाती, अगर इताअत मुस्तफा करते तो इबादत खुदा छूट जाती। दो मसले पैदा हो गए थे। हजरत अली ने इताअत मुस्तफा की और इबादत, हजरत अली ने ये सोचा था कि अगर इबादत खुदा करूंगा इताअत मुस्तफा नहीं करूंगा तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज को कबूल भी ना फरमाए। लेकिन इताअत मुस्तफा की सुनो क्या सिला निकलता है। हुजूर ने फरमाया अली क्यों रो रहे हो। हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है इसलिए मैं रो रहा हूँ। हुजूर ने कहा अदा करोगे या कज़ा। हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह अदा करूंगा, अगर कज़ा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि नबी का गुलाम, औलिया का शहंशाह, उसने कज़ा कर ली तो फिर हम क्या है, हम भी कज़ा कर ले। हुजूर ने फरमाया अली अदा की नियत करो। हजरत अली ने कहा हुजूर सूरज तो डूब गया है, सूरज डूब गया है। हुजूर ने कहा अली अदा की नियत करो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के लिए दुआ की कि अल्लाह अली तेरे महबूब की इताअत में था, उसने मेरी खिदमत की है और ये जाहिर कर दिया, अपने उम्मती होने का हक अदा कर दिया। अब मेरा हक ये है कि अली की नमाज के लिए सूरज को पलटा दे। खुदावंद तबारक व तआला फरमाता है कि महबूब सूरज आपका गुलाम है, इशारा कर दो सूरज निकल आएगा। फिर क्या था, हुजूर ने यदुल्लाह वाला हाथ, गोरा गोरा हाथ निकाला, उंगली उठाई, सूरज को इशारा कर दिया, डूबा हुआ सूरज वापस असर के वक्त पे आ गया। और हुजूर गोया हुए और कहने लगे अली नमाज में जल्दी मत करना, सूरज तब तक नहीं डूबेगा जब तक तुम्हारे महबूब न कहेंगे। और आजकल वो हजरत अली की नमाज थी कि छूट गई तो रोने लगे, लेकिन आज मुहिब्बान अली कितनी भी नमाज छूटे कोई अफसोस नहीं है, कोई रंज नहीं है, कोई परवाह नहीं है, नमाज ही छोड़ते ही जाते हैं। नमाजों के बारे में कह दिया जाए तो चिढ़ जाते हैं। हाँ तो अर्ज ये कर रहा था कि मौलाना रूम अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक मलंग आया। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा
बैठे रहे, मलंग खड़ा रहा। थोड़ी देर हुई, मौलाना रूम रहमान ने मलंग को इग्नोर करते हुए पढ़ाना शुरू रखा। कोई ध्यान नहीं दिया, मलंग को ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर हुई, मलंग ने कहा, मौलाना ई चीज, मौलाना ये क्या है? मौलाना रूम रहमान ने फरमाया कि बाबा ये कीलो काल अस्त तू नमीदानम, बाबा ये कीलो काल है, ये सर्फ नौ है, ये फलसफा मंतिक है, तू नहीं जानता ये क्या है? मौलाना रूम को पता नहीं था कि वो मलंग कौन है। वो कोई और नहीं, कुतुबे ज़मा, वक्त के गौस हज़रत शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमत थे, जिनके इल्म के बारे में यूं कहूंगा कि अगर कोई इतना आपके बचपन के दौर था, आपके वालिद कोई वली नहीं थे बल्कि एक कॉमन मैन थे, एक आम आदमी थे। आप उनके घर पे पैदा हुए, जब मदरसे में गए तो मौलाना ने नाजरा पढ़ाना शुरू करा, लेकिन जो नाजरा पढ़ा आपने हिफ्ज भी कर लिया। 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करके रख दिया था। वो शम्स तबरेज़ थे। आप इतना पढ़े कि आपकी बारगाह में कोई आकर इल्म हासिल करता तो वो यूं सोचता कि मुझे अभी कुछ नहीं आता। अरे जिसके इल्म के दीवाने रूम वाले थे ना, वो दीवाना शम्स तबरेज़ ही था। मौलाना रूम अभी नहीं जानते थे कि ये शम्स तबरेज़ है, और कहने लगे, बाबा कीलो काल तू नबी दानम, बाबा ये सर्फ नो है, तू नहीं जानता। ये कह लिया, मलंग बाबा चुप हो गए। थोड़ी देर हुई, वापस कहा, बाप मौलाना ये चीज, मौलाना ये क्या है? मौलाना रूम थोड़े गुस्से में आ गए। बाबा कह दिया, एक कीलो काल तू नमी दानम, ये सर्फ नौ मंतिक फलसफा है, तू नहीं जानता। मलंग चुप हो गए। थोड़ी देर हुई, वापस पूछा, मौलाना ये चीज। मौलाना गुस्से हो गए कि बाबा समझ में नहीं आता, बता दिया ना, ये कीलो काल तू नमी दानम, तू नहीं जानता ये क्या है? ये सर्फ नौ फलसफा मंतिक है, ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, तू नहीं जानता, तू जा यहाँ से। मलंग बाबा गुस्से में आ गए, उनकी सारी किताबों को उठा के हौज में फेंक दिया। आज के जमाने की तरह पहले की किताबें नहीं हुआ करती थी। आज के जमाने में ऐसी किताबें हैं, पानी गिर जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंट है ना, मशीन के जरिए छापी गई है। लेकिन पहले के जमाने में किताबें प्रिंट नहीं, काली स्याही से लिखी जाती थी कि अगर थोड़ा पानी गिरा नहीं कि स्याही बिगड़ी नहीं। वो शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमान ने अब किताबों को उठा के हौज में फेंक दिया। मौलाना गुस्से हो गए, अपना डंडा लेके बाबा के पीछे दौड़े, बाबा आगे, मौलाना पीछे। शागिर्दों को हुक्म दिया, ए शागिर्दों, कोई जाने न पाए, बाबा मलंग जाने न पाए, पकड़ लो, उसने हमारी मेहनत को बर्बाद कर दिया है। किताबें हम कहां से लाएंगे, अब इल्म दीन कहां से पढ़ाएंगे हम तुमको, उसको पकड़ के लाओ, आज उसको नहीं छोड़ना। बाबा मलंग दौड़ते रहे, कितनी देर तक दौड़ते रहे। दौड़ते जब थक गए तो रुके और कहने लगे कि मौलाना क्यों दौड़ रहे हो, मौलाना क्यों दौड़ रहे हो? मौलाना रूम और गुस्से आ गए, ये बाबा सोच हुएगा कि बिल्ली जहाज को चली। अरे तुमने हमारी साल की बर्बादी को मिट्टी में मिला दिया, पानी में डाल दिया, कि पूरी की पूरी स्याही निकाल दी। अब हम इल्म दीन कहां से हासिल करेंगे? शम्स तबरेज़ ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं किताबें निकाल के देता हूं। मौलाना रूम ने कहा, अब क्या फायदा, कितनी देर हो गई, अब किताब का एक हुर्फ भी बाकी नहीं रहा होगा, पानी उसे मिटा चुका होगा। शम्स तबरेज़ ने कहा, अरे चलो तो सही, मैं निकाल के देता हूं। शम्स तबरेज़ ले गए, हौज के पास गए, गोता लगाया, अंदर गोता लगाया, किताबें ली, किताबें पकड़ी हाथ में और मौलाना रूम को दिखाई, और यूं झिंझोड़ती हुई देती। किताबें दी, मौलाना रूम ने देखी तो किताबों के अंदर से पानी की बजाय धूल गिर रही है। कोई हुरूफ में कुछ मिटा, कोई फर्क नहीं आया, कोई हुरूफ मिटा नहीं है, पानी की बजाय किताब कोरी पड़ी हुई है और धूल गिर रही है। मौलाना रूम दंग रह गए, कहने लगे, बाबा ये चीज थी। बाबा ने कहा कि रूमी ये हाल अस्त तू नमी दानम, रूमी ये हाल है, तू नहीं जानता। यूं कह के चले गए, भागते गए। मौलाना रूम एक वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, देख के पता लगा लिया था कि ये कोई जादूगर नहीं है बल्कि एक अल्लाह का मुकद्दस वली है। आपके पीछे पीछे दौड़े, मौलाना रूम पीछे दौड़ते गए। वो मलंग बयाबाद जंगल में गया, वहां पे जाके इबादत में मशगूल हो गया। मौलाना रूम ने देखा, अरे ये तो इबादत कर रहा है। इबादत से जब फारिग तहसीन हो गए, मौलाना रूम गए और कहा, बाबा मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। बाबा
मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। मौलाना रूम को शम्स तबरी ने जवाब दिया, अगर तू मेरा मुरीद बनना चाहता है तो मेरी एक शर्त है। आपने कहा कौन सी शर्त है? कि शर्त ये है कि तू नमाज मत पढ़ना, न फर्ज पढ़ना, न नफल पढ़ना, न सुन्नत गैर मौक़िदा, कोई नमाज न पढ़ना। मौलाना रूम सोचने लगे अल्लाह के, और दिल में सोच के ये कहने लगे, या अल्लाह जिसका मैं मुरीद बनना चाहता हूँ वो मुझे नमाज से रोक रहा है। अगर हमारे जैसा कोई होता तो ये कहता, अरे वाह क्या पीर मिला है, नमाज की ना कह रहा है, नमाज पढ़ने से रोक रहा है। ऐसे नहीं थे, बल्कि दोनों वाली थे, दोनों आलिम दीन थे, दोनों वली कामिल थे। मौलाना रूम ने कहा कि बाबा मुझे कुछ मोहलत दीजिए, सोच के बाद में सोच के आता हूँ। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा गए, दूसरे दिन आए और कहा ठीक है बाबा, मैं नमाज तो पढ़ूंगा, सिर्फ फर्ज पढ़ूंगा, इतनी इजाजत दे दो। फर्ज पढ़ूंगा, सुन्नत न पढ़ूंगा, नफल न पढ़ूंगा, वाजिब भी नहीं पढ़ूंगा। शम्स तबरी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है, फर्ज पढ़ना चाहो तो फर्ज पढ़ लेना, नहीं तो वो मत पढ़ना, फर्ज की मैं इजाजत देता हूं। मौलाना रूम गए, 2 दिन बाद फर्ज नमाज पढ़ के आए। फर्ज नमाज पढ़ के आए, देखा कि शम्स तबरी एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, एक पहाड़ी पे बैठे हुए, आपके कंधे पे एक साल है, आपके कंधे पे एक चादर रखी हुई है। मौलाना रूम जाके बैठ जाते हैं। शम्स तबरी ने अपनी चादर उठाई, चेहरे पे मार दी, ओढ़ा दी। जो ये चादर चेहरे पे आ गई, मौलाना रूम ने क्या देखा कि चादर के अंदर महबूबे 2 जहां तशरीफ लाए। और मौलाना रूम अरीज़ा पेश करने लगे कि या रसूलल्लाह, मैं नमाज तो पढ़ना चाहता था, मैं नफल तो पढ़ना चाहता था, मैं सुन्नत तो पढ़ना चाहता था, वाजिब भी पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे पीर के हुक्म की वजह से मैंने ये नमाजें छोड़ दी। लेकिन हाँ या रसूलल्लाह, फर्ज नमाज तो पढ़ ही ली है मैंने, या रसूलल्लाह फिदा को उम्मी अभी, मैंने वो नमाज पढ़ ली है। हुजूर अपने लबहाए मुबारक हिलाने ही वाले थे, कुछ कहने ही वाले थे, हुजूर कुछ कहने ही वाले थे कि उस अल्लाह के बंदे ने चादर खींच ली, चादर को खींच ली। मौलाना रूम गुस्से हो गए, खड़े हो गए